We are doing chapter India after independence, and today we will do role of planning commission. Role of planning commission. Planning commission का role आज हमने करना है. So in this you will say like this कि planning commission जो था ना, the role of planning commission was to lift India and Indians out of poverty. Lift India and Indians out of poverty and build a modern technical and industrial base. The role of Planning Commission was to lift India and Indians out of poverty and build a modern, strong technical base. Now, is it clear? Role of Planning Commission was to lift India out of poverty, India and Indians out of poverty and build a modern, strong technical base. Modern, strong technical industrial base. Modern, strong technical industrial base. Next, a broad agreement on mixed economy model. A broad agreement on mixed economy model. A broad agreement on mixed economy model. Mixed economy. A broad agreement on mixed economy model. First is to lift India and Indians out of poverty. फिर आपने कहना है इसी में ही and build a modern, technical, strong industrial base. A broad agreement on mixed economy model. Mixed economy model. Next, you will write like this. In mixed economy, both state and private sector would play important roles. In mixed economy, both private and state sectors would play important role. In increasing production and generating jobs. In mixed economy, both private and state sectors play important role in increasing production and generating jobs. Increasing production and generating jobs. दोनों ही मिलके वर्क करेंगे. Next, roles of state and private sectors to be defined. Roles of state and private sectors to be defined. Roles of state and private sectors to be defined. Next, to make 5-year plans. To make 5-year plans. Planning Commission, role of Planning Commission, first of all, to lift India and Indians out of poverty and build modern, strong, technical, industrial base. A broad agreement on mixed economy model. In mixed economy model, next point मैं बता सकते हूँ, in mixed economy model, both state and private sectors work together to increase the production and generate jobs. Next, role of state and private sectors were to be defined. Roles of state and private sectors were to be defined. Next, 5-year plans. To make 5-year plans. To make 5-year plans. So this is the role of the Planning Commission. To make 5-year plans. Next is, a political equality has no meaning without social and economic equality. ये किसने बोले words? B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar, the father of the constitution, उन्होंने क्या कहा after independence? B.R. Ambedkar ने कहा था, what did Dr. B.R. Ambedkar mean when he said that in politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality? B.R. Ambedkar ने बोला था
कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमें दे दी, बट व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसके बारे में क्या, वो तो हमें नहीं दी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन बट नो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इज गिवन टू द पीपल। तो ये बी आर अम्बेडकर का एक क्वेश्चन था, लिसन अगेन। तो इससे उनका क्या मतलब था? बी आर अम्बेडकर, लिसन अगेन, व्हाट डिड बी आर अम्बेडकर मीन व्हेन ही सेड, क्या वो कहना चाहते थे दैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। इससे उनका क्या मतलब था कि इन पॉलिटिकल फील्ड तो इक्वालिटी मिली, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड में हम अभी भी हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो इससे उनका क्या मतलब था? अब आप यहाँ पे बताओगे, बी आर अम्बेडकर वाज ऑन द व्यू दैट universal adult franchise, B.R. Ambedkar was on the view that universal adult franchise would give political equality, B.R. Ambedkar was on the view that universal adult franchise would give equality in political field. किस फील्ड में इक्वालिटी मिलेगी? पॉलिटिकल फील्ड। बट it would not remove gap between. B.R. Ambedkar was on the view that universal adult franchise would give equality in political field. वो हमें पॉलिटिकल फील्ड में तो इक्वालिटी दे देगी, क्योंकि हमें सबको क्या मिल गया था? राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने इसीलिए बोल दिया ना कि आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, हर एक को राइट टू वोट मिला था। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो तभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड एक ही सबको कवर कर रहा है। बी आर अम्बेडकर was on the view that universal adult franchise would give equality in political field, but it would not remove gap between rich and poor and discrimination on the basis of caste. उन्होंने कहा कि इक्वालिटी तो मिल गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, पॉलिटिकल फील्ड में हमें इक्वालिटी मिली, बट इट वुड नॉट रिमूव गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एंड सोशल इक्वालिटी। उन्होंने कहा इससे ना तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर खत्म हुआ, ना ही सोशल इक्वालिटी मिली। इन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू विल स्टिल बी डिनाइड। The principle of one man, one value still be denied. B.R. Ambedkar was on the view that universal adult franchise would give equality in political field, but it would not remove gap between rich and poor and discrimination on the basis of caste. उन्होंने कहा ये तो फिर वैसे का वैसा है, ये तो फिर चली जा रहा है, अभी भी गैप है रिच एंड पुअर में, अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू विल स्टिल बी डिनाइड। उन्होंने कहा वन मैन वन वैल्यू, अभी भी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा। वन पर्सन वन वोट तो हो गया, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम तो हो गया, बट प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, हर एक की वैल्यू सेम है, दैट इज स्टिल डिनाइड। The principle of one man, one value still be denied. ये तो अभी भी डिनाई है, अभी भी नहीं पूरा हो रहा। वन पर्सन वन वोट तो हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आने से, बट वन मैन वन वैल्यू, दैट प्रिंसिपल इज स्टिल डिनाइड। नो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे फ्रेमर्स क्यों लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट को सेटअप नहीं करना चाहते थे? व्हाई दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस? क्यों हमारे फ्रेमर्स लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स को दोबारा सेटअप नहीं करना चाहते थे? तो यू नो इट वेरी वेल कि बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस प्रॉमिस्ड, आजादी से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वुड set up linguistic states. Before independence, Congress promised that after independence, they would introduce linguistic states. But after independence,
Congress did not take any step to fulfill this promise. But after independence, Congress did not take any step to fulfill this promise. Before independence, तो Congress ने promise किया था कि after independence they would introduce linguistic states. But after independence, Congress did not take any step to fulfill its promise. Congress ने ऐसा कोई step नहीं लिया था जिससे उसका promise पूरा होता. Congress did not take any step to fulfill its promise. Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. Both दोनों कौन Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Vice Prime Minister Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel, they were against the creation of linguistic states. वो linguistic states की favor में नहीं थे. They were against the creation of linguistic states. Both Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel, they were against the creation of the linguistic states. वो linguistic states की favor में, linguistic states की creation की favor में नहीं थे. Listen again, Congress ने promise किया था before independence that after independence Congress would introduce linguistic state. But after independence, Congress did not take any step to fulfill its promise. Both Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of the country, and Deputy Prime Minister of the country, Vallabhbhai Patel, they were against the creation of the linguistic states. वो linguistic states की favor में नहीं थे. They feared that this would, उनको डर लगता था पंडित नेहरू and Vallabhbhai Patel को, they feared that this would lead to the further division of the country on the basis of language. They feared that this would, वो दोनों ही डरते थे. They feared that this would lead to the further division of the country on the basis of language. They feared that this would lead the further division of the country on the basis of language. And next you can write, a country could not afford such division. Country could not afford such division. Country could not afford such division. Before independence promise हुआ, but Congress ने उसे पूरा नहीं किया. अब Pandit Nehru, Prime Minister, and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel, they were against the creation of the linguistic states. वो नहीं चाहते थे कि linguistic states बने. उन्हें डर लगता था कि कहीं ना कहीं linguistic states अगर बनी तो इंडिया की further division हो जाएगी. This led to the further division of the country on the basis of language. और वो कहते थे कि ये आप कंट्री बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. अब दोबारा अगर डिवीजन होगी, this could not afford our country जो इंडिया, that could not afford such division. हमारी कंट्री उस डिवीजन को अफोर्ड नहीं कर पाएगी. Now is it clear? पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, बट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी अभी भी नहीं थी. स्टिल देयर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, स्टिल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि वन मैन वन वैल्यू, वो वाला आइडिया अभी भी कहीं ना कहीं नहीं, वो अभी भी डिनाइड है. दैट आइडिया स्टिल डिनाइड. तो उसे फॉलो करना चाहिए. लिंग्विस्टिक स्टेट्स प्रॉमिस तो किया, पूरा नहीं किया. कौन डरते थे? वल्लभ भाई पटेल एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं ना कहीं कंट्री की डिवीजन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड कंट्री कुड नॉट अफोर्ड सच डिवीजन. ऐसी डिवीजन अब कंट्री दोबारा अफोर्ड नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट, इंग्लिश कॉन्टिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ऐसा क्या रीजन बना कि इंग्लिश कॉन्टिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इंग्लिश जो थी ना, कॉन्टिन्यूड, इंग्लिश continued to be used in India after independence because South Indian states जो थी ना, they strongly opposed, South Indian states strongly opposed Hindi. वो हिंदी को oppose कर रही थी. South Indian states expressed या strongly opposed Hindi. South Indian states हिंदी के against थी. When Hindi was made the, listen again, linguistic state, क्यों हिंदी continue रही? Because South Indian states were South Indian states strongly opposed Hindi. When Hindi was made the official language
जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु in 1965 there was violence in Tamil Nadu when Hindi was made the official language. There was violence in Tamil Nadu in 1965 and they demanded that with Hindi English should also make official language. उन्होंने कहा हिंदी के साथ इंग्लिश को भी official language बनाओ. Our framers agreed because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka due to this reason. Our framers agreed, वो मान गए क्योंकि वो कंट्री में सिविल वार नहीं चाहते थे जो कि अभी अभी श्रीलंका में हुई थी ड्यू टू दिस रीजन. लिसन अगेन, हिंदी कंटिन्यू रही. ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने हिंदी को अपोज किया. वो हिंदी की दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ हिंदी. साउथ इंडियन स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज्ड हिंदी. When Hindi was made official language of the country, जब हिंदी को official language बनाया गया, there was violence in कहाँ पे violence हुई? तमिलनाडु में. In which year? 1965. There was violence in तमिलनाडु in 1965. They demanded. अब उन्होंने क्या डिमांड रखी? violence में तो कोई डिमांड रखी होगी. They demanded that with Hindi, English should also make official language. उन्होंने कहा हिंदी के साथ इंग्लिश को भी official language बनाओ. Our framers, हमारे जो framers थे, they agreed, वो मान गए. ऐसा क्यों? साथ में ये भी बता दो. Our framers agreed because they didn't want civil war in India. वो इंडिया में क्या नहीं चाहते थे? civil war that had happened in Sri Lanka due to this reason. क्योंकि श्रीलंका में भी लैंग्वेज के कारण वहाँ पे सिविल वार हुई थी. उन्होंने सिन्हाला को अपनी लैंग्वेज बनाया तो तमिल ने वहाँ पे भी कहा था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो वो नहीं माने तो वहां पे सिविल वार हुई थी. आपको नहीं लिखना, ऐसे बता रही हूँ. हिंदी कंटिन्यू रही बिकॉज साउथ इंडियन सॉरी इंग्लिश कंटिन्यू रही बिकॉज साउथ इंडियन स्टेट्स जो थी उन्होंने हिंदी को अपोज किया. दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ हिंदी लैंग्वेज. अब व्हेन हिंदी वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री देयर वाज वायलेंस. कहाँ पे वायलेंस हुई? इन तमिलनाडु in 1965. They demanded that with Hindi English should also make official language and our framers agreed. वो मान गए because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka due to this reason. क्योंकि श्रीलंका में इसी रीजन के कारण वहां पे सिविल वार हुई थी. Now is it clear? Next, listen again. Planning Commission. I think no problem. प्लानिंग कमीशन में वो क्या चाहते थे कि इंडिया को गरीबी में से बाहर निकालना, टू लिफ्ट इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी, इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी. और क्या बनाना चाहते थे? बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस. और वैसे भी एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब क्या था? स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे एंड जॉब्स जनरेट करेंगे. ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स भी इन्होंने बनानी शुरू कर दी. तो इस वे से आप इसमें बताओगे प्लानिंग कमीशन में. नेक्स्ट, पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग. पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है जब तक पर्सन को सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दी. बी आर अम्बेडकर ने इस बात में क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर वाज ऑन द व्यू दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी would be given in the political field. ठीक है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फील्ड में तो इक्वालिटी मिल गई, बट स्टिल देयर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, स्टिल देयर इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिल one person one value, the idea of one person one value is still denied. Next is क्यों हम कहेंगे कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट क्यों नहीं सेटअप करना चाहते थे? कांग्रेस ने बिफोर इंडिपेंडेंस प्रॉमिस तो किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड बी सेट अप इन इंडिया, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस डिडंट टेक एनी स्टेप टू फुलफिल इट्स प्रॉमिस. क्यों नहीं प्रॉमिस को पूरा किया? बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल फियर्ड, वो दोनों ही डरते थे कि दिस वुड लेड टू द डिवीजन, फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लैंग्वेज बेस. उन्होंने कहा लैंग्वेज बेस पे कंट्री का फिर बंटवारा ना हो जाए कहीं पे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे. दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. वो नहीं चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप करना.
कौन कौन नहीं चाहते थे? वल्लभ भाई पटेल एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम कहेंगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो थी वो क्योंकि उनको था कि कंट्री लैंग्वेज बेसिस पे बढ़ेगी, ऐसी डिवीजन इंडिया अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इंडिया वाज नॉट इन अ कंडीशन टू अफोर्ड सच डिवीजन अगेन। वो कहते हैं कि इंडिया ऐसी कंडीशन में नहीं, अभी तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो कहते हैं अभी अभी तो रिलीजन के नाम पे हम बटे हैं, तो अब फिर दोबारा लैंग्वेज बेस पे अगर बंटवारा होएगा दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड, या ये बर्दाश्त नहीं होएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप करना। नाउ इज इट क्लियर? डरते थे दिस वुड लेड टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री, फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड कंट्री कुड नॉट अफोर्ड सच डिवीजन अगेन। वो कहते थे कंट्री कहाँ से अफोर्ड करेगी इतनी डिवीजन। नेक्स्ट, इंग्लिश कंटिन्यू रही आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स जो थी वो हिंदी की फेवर में नहीं थी। जब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, व्हेन हिंदी वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप बताओगे दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। दे क्रिएटेड वायलेंस इन 1965। दे डिमांडेड दैट विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज। आवर फ्रेमर्स एग्रीड, एंड क्यों वो माने? बिकॉज दे डिडंट वांट सिविल वॉर इन इंडिया that had happened in Sri Lanka due to this reason. वहां पे भी लैंग्वेज के कारण वहां पे सिविल वार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज how was economic development of India visualized in early decades after independence? यहाँ पे आपने the economic development of India visualized in the early decades after independence आप बताओगे बाय द फॉलोइंग इज, वहां पे आप सबसे पहले बताओगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि प्लानिंग इन 1950 गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन। इन 1950 गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया? प्लानिंग कमीशन टू help design and execute suitable policies for economic development. In 1950, government set up planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. Next, there was a broad agreement on mixed economy model. There was broad agreement on mixed economy model. You have done it before in planning commission. Some points are same. Next, here both the state and private sector would play important role in increasing production and generating jobs. In 1956, second 5-year plan was framed, and this focused strongly on the development of heavy industries such as steel. यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल भिलाई स्टील प्लांट, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 169, एक है ना हिंट्स में दिया हुआ है, वहां से आप ढूंढ लो इसको। 169 हिंट्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप in the backward area of Chhattisgarh. Bhilai steel plant was set up in the backward area of Chhattisgarh, came to be seen as the sign of development of modern India after independence. यहाँ पे हमने स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया कि कैसे उन्होंने प्लान बनाया था। 1956 second 5-year plan was framed, and this focused strongly on the development of heavy industries. अब कौन सी इंडस्ट्री? स्टील इंडस्ट्रीज। और उन्होंने भिलाई में एक स्टील प्लांट सेटअप किया था इन 1959। इन भिलाई बैकवर्ड एरिया में स्टील प्लांट वाज सेटअप, और ये जो स्टील प्लांट था ना, ये क्या शो कर रहा था? साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आप बता दोगे building of large dams. For example, आप बताओ, building of large dams were also became the sign of progress.
Bridges and dams became the symbol of development in independent India. Building of large dams were also became the sign of progress. Bridges and dams became the symbol of development in independent India. नेक्स्ट आप बता सकते हो sectors, private and state sectors focus on the heavy industry and the effort of state regulation of economy was to guide economic policy for the next few decades. Listen again. First of all, तो आप इसमें यही बता दोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पहले फर्स्ट पॉइंट में यही बता दोगे कि 1950 में क्या सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1950. तो फिर आप बताओगे देयर वाज एन एग्रीमेंट, ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. फिर आप सेम पॉइंट व्हिच यू हैव रिटन हियर बोथ प्राइवेट एंड स्टेट सेक्टर वर्क टुगेदर to increase the production and to generate jobs. जो आपने इधर पॉइंट्स के ना you will write same in economic development. फिर आप बताओगे कि in 1956 second 5-year plan was also introduced and this focused on heavy industries such as steel industry. यहाँ पे आप भिलाई की एग्जांपल दे दोगे, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में. फिर आप कहोगे dams were also built and dams and bridges were also became the symbol of development of independent India. ये भी independent India में आप कहोगे symbols बन गए for the development. No, it's enough. Listen again. सबसे पहले तो first 5 year आप पहले बताओगे 1950 planning commission setup हुआ, ठीक है. फिर आप बताओगे planning commission जो setup हुआ था ना वो economic development के लिए, ठीक है. In 1950 first planning commission was set up for the economic development. फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में यही बता सकते हो ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वाज मेड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का आप बताओगे कि हियर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू जनरेट जॉब. सेम पॉइंट्स हैं. फिर आप बताओगे 1956 सेकेंड 5-year प्लान वाज फ्रेम्ड. तो दिस फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज सच एज, यहाँ पे आप बता दोगे भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में. आप बताओगे बैकवर्ड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, रूरल एरियाज में सेटअप हुआ था. तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ डेवलपमेंट. भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के बैकवर्ड एरिया में एंड दिस वाज द साइन ऑफ प्रोग्रेस. फिर आप बताओगे डैम्स वर आल्सो बिल्ट, डैम्स भी बने. तो ब्रिजेस एंड डैम्स वर आल्सो द साइन ऑफ प्रोग्रेस, were also the sign of progress and development of independent India. Now is it clear? Is there any problem? Listen again. First of all, 3 problems faced by our country. कौन सी problems आई थी हमारी newly independent country को? First तो refugees की problem आई. Then ऐसी diverse country के लिए constitution frame करना था, ठीक है, जिसमें सबको equal rights भी देने थे, ठीक. फिर प्रिंसली स्टेट्स भी थी. प्रिंसली स्टेट्स 500 थी जो कि जिनको ब्रिटिश ने कहा था वेदर टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और टू रिमेन इंडिपेंडेंट और टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ऐसी प्रिंसली स्टेट्स को भी सेटअप करना था. नियर अबाउट 500 प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश लेफ्ट 500 प्रिंसली स्टेट्स. उसके बाद आपका आ गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है. फिर प्लानिंग कमीशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला आपका ऑलमोस्ट सेम ही आंसर. देन पॉलिटिकल इक्वालिटी तो कितने मिली, B.R. अम्बेडकर, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हर एक को राइट टू वोट मिल चुका था. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली बट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी नहीं थी. अभी भी रिच एंड पुअर में गैप था, अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थे. तो अभी भी वो वाला आइडिया कहीं ना कहीं 1 पर्सन 1 वैल्यू वो नहीं फॉलो किया जा रहा था. लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट अभी भी नहीं सेटअप हो रही थी. क्यों डरते थे हमारे फ्रेमर्स? क्योंकि कांग्रेस ने प्रॉमिस तो किया बट
इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर एंड वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो डरते थे कि अगर हम लिंग्विस्टिक लाइन स्पेस स्टेट को सेटअप करेंगे, मे बी दिस लेड टू द फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री, और उनको लगता था कि कंट्री ऐसी डिवीजन अब अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, इंग्लिश कंटिन्यू रही क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स हिंदी की फेवर में नहीं थी, और जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। इन 1965 वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने कहा विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारे फेमस जो थे वो एग्री कर गए बिकॉज दे डिडंट वांट सिविल वार इन इंडिया दैट हैड हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में इसी बात को लेके सिविल वार हुई थी, वहां पे भी लैंग्वेज बेस्ड झगड़े हुए थे, तो हमारे फेमस वो सब कुछ देख चुके थे और वो इंडिया में ऐसी सिविल वार नहीं चाहते थे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप यही बताओगे ना कि प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फिर उन्होंने क्या किस पे फोकस किया, उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करेंगे। फिर उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस की, हैवी इंडस्ट्रीज लेके आए। भिलाई इसकी एग्जांपल है, भिलाई में उन्होंने एक बड़ा सा प्लांट सेटअप किया, एक बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट सेटअप हुआ। तो ये आप कह सकते हो कि एक साइन ऑफ प्रोग्रेस था। फिर डैम बनने शुरू हुए, और ये डैम्स एंड ब्रिजेस जो बनने शुरू हुए, ये भी हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के सिंबल्स थे। तो दिस यू विल राइट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नो इज इट क्लियर? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। If you are having any problem regarding your these topics, you can ask. अच्छा, तो